Hello everyone. So today we are going to revise week 1 content of mathematics for qualifier exam or quiz 1 exam. So the syllabus for the same is natural number and their operation, rational numbers, real and complex number, set theory, construction of subset and set operation, examples of set operation and counting problem, relation, function, their example, prime number, why is number irrational, set versus collection, and degree of infinity. So now let's revise it. Natural numbers and integer. So what are natural number? Natural numbers are the numbers from 0 to infinity. So make a note that 0 here we have considered as a natural number. Like in childhood, we have always learned that 1 to infinity is a natural number and 0 to infinity is a whole number. But in this course, we are taking 0 in the natural number. Now everyone knows what is integer. So negative, positive, and zero are the integers. In general, when we talk about prime numbers, we generally consider the set of natural number as a universal set. We never talk that -3 is a prime number or not. We always talk from 0 to infinity about prime numbers. Like we talk that if 1 is prime number or not, 2, 10, 20. We never go towards the negative side. So the universal set which we already consider whenever we are talking about prime number is the natural numbers. Please observe that 0 and 1 is neither prime nor composite, and the reason is that prime number have two factor. One it's 1, and composite numbers are the numbers that are not prime, therefore they have more than two factors. But 0 and 1, these are the numbers, like 0 have no factor and 1 have only one factor, that is itself. So this is neither a prime nor the composite. To check whether the natural number n is prime or not, it is enough to check whether it is divisible by any natural number that is less than or equal to under root n. बेसिकली मुझे कोई भी नंबर दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल 9. तो अगर मुझे चेक करना है कि 9 प्राइम है या नहीं, सो व्हाट आई एम सपोज टू डू इज कि 9 का अंडर रूट क्या होता है 3. तो 0 से लेकर 3 तक अगर उनके बीच में ऐसा कोई नंबर है जो कि 9 का फैक्टर है, तो 9 प्राइम नहीं है, वरना 9 प्राइम है, एक्सक्लूडिंग दी 1 फ्रॉम 0 to 3 ऑब्वियसली, क्योंकि every number is divisible by 1. 1 is factor of every number. So if it is divisible by some natural number that is less than or equal to under root n other than 1, then the number is not a prime number. अब यार इस नॉलेज से फायदा क्या हुआ कि फॉर एग्जाम्पल मैं कल को आपको 300 देती हूँ, या फिर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको 99 देती हूँ कि आप पता लगाओ 99 एक प्राइम नंबर है या नहीं. तो 99 का अंडर रूट क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली 9 और 10 के बीच में होगा, क्योंकि 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 एंड 99 इज जस्ट अ 1 लेस देन 100. तो यार आपको सिर्फ 1 से 9 के बीच में ही चेक करना है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या ये सारे नंबर में से कोई भी ऐसा नंबर है जो कि फैक्टर है 99 का. अगर एक भी नंबर फैक्टर नहीं है 99 का एक्सेप्ट दी 1, देन 99 इज द प्राइम नंबर, बिंगो. सो यार आपको 10 से लेकर 98 तक का तो चेक ही नहीं करना पड़ा. So this has reduced a lot of your task. So yeah, keep this point in your mind before going to the exam. So here's the example for the same. So suppose we want to check whether 11 is a prime number or not. At first observe कि under root 11 किसके बीच में आएगा. So it will be between 3 and 4. So all you have to check is 0, 1, 2 and 3. Whether 11 is divisible by these four numbers or not. If there exists even a number excluding 1 which is a factor of 11, then 11 is not a prime number. Otherwise 11 is a prime number, and here since 1 has not to be counted, 2 and 3 are not divisible by 0, and 0 तो यार किसी का डिवाइजर हो ही नहीं सकता. क्यों? आपने सुना ही होगा that
anything upon 0 is not defined because it goes to the infinity, and infinity is not a definite number. So 0 cannot be a divisor of any non-zero number. So all we had to check is for 2 and 3 to say whether 11 is a prime number or not. So I think that this logic of checking the prime number is very, very important to reduce your calculation and speed up in your exam. So take a note. To list out all the prime numbers less than some fixed number, sieve of Eratosthenes is an efficient algorithm. Although this is a very basic algorithm, but let's have a quick look over it. So this is the table which we have to make. So hota kya na, for example, I want to count that how many prime numbers exist between 1 to 100. So all you have to make a table till the natural number जिसके पहले तक हमें prime numbers count करने हैं. Now 1 को तो पहले ही black out कर दो. Why? क्योंकि हम 1 को check नहीं करते whenever we are talking about a prime number, because every prime number is a factor of itself and 1. It is divisible. Sorry, not a factor. It is divisible by 1 and itself. So 1 को तो black out कर दो. अब 2 से check करो. तो यार 2 एक prime number है. अब क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है तो 2 के जितने भी मल्टीपल होंगे वो प्राइम नंबर नहीं होंगे. 2 के मल्टीपल से मेरा मतलब है कि यार 2 उसका फैक्टर है. तो 1 एंड इटसेल्फ के बाद एक फैक्टर आ चुका है, दैट इज 2. सो every number that is a multiple of 2 will be cancelled from this list. So let me thicken my pen. So every even number gets cancelled as soon as I count 2 as the prime number, right? Okay. Now let's go towards 3. So 3 is again a prime number, but now anything that is a multiple of 3 will be cancelled out. Why? Because now it has factor 3, therefore it won't be a prime number. So the factors of 9 will be cancelled out. So this is how we are going to go. Now let's count 5 as the prime number, but now all the multiples of 5 will be cancelled out, whichever left. So this complete line gets cancelled out. Okay. So this is how we are going to step back. Like 7 will be a prime number, but the multiples of 7 will be cancelled out. So you will realize कि आपको काफी कम calculation करनी पड़ रही है and बहुत सारे नंबर तो हमने ऐसे ही ब्लैक आउट कर दिए. तो अब जो फाइनली आपके जो सर्कल नंबर्स बचेंगे ना, उनको काउंट करो and that number will be equal to the number of prime numbers that lie between 1 to 100. So the task has become the easy by that simple logic. Let's come back to this. So I hope आपको ये वाला जो थ्योरम है समझ आ गया होगा. बहुत easy थ्योरम है, कुछ भी नई चीज हमने नहीं लगाई है. Now let's understand what is GCD. GCD is nothing but our HCF, our old friend HCF. So it's the greatest common divisor, and HCF का full form क्या होता था? Highest common multiple. So हम HCF कैसे निकालते थे यार? अब जल्दी से देख लेते हैं. Okay. So हम HCF निकालते थे. For example, I want to find out for 12 and 9. तो यार इनके factors निकालो. And when I'm talking कि factor निकालो, I'm saying कि prime factor निकालो. So it will be 2 into 2 into 3. And 9 will be 3 into 3. अब यार आपने इनके प्राइम फैक्टर निकाल लिए. अब इनके बीच में जो कॉमन फैक्टर्स है ना, इनको सर्कल आउट कर लो. सो वी हैव ओनली 3 एज द कॉमन फैक्टर. फॉर एग्जांपल लेट्स टेक 16. तो जैसे आप 16 लोगे ना, तो देखो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे. नहीं, एक्चुअली 16 भी मत लो, बिकॉज let's take 22, so it will be 2 into 11. No, like actually what I want to say is कि for example we have two factors in common of the two number, let's say 2 and 3. So all you have to do to calculate GCD is multiply all the common prime factors of the given two number. Therefore this will be the R GCD. Okay, now it's easy. I'm unable to give the example, but I hope it's clear. So all you have to do is find out the prime factors, then circle out the common, and then finally multiply all the common factors. And this is how we will get our GCD or HCF.
नाउ हियर वी हैव टू की पॉइंट्स फॉर जीसीडी. तो यार हमारे पास दो नंबर है, फॉर एग्जांपल 0 एंड एनी नॉन जीरो नंबर. तो यार इसका जो जीसीडी होगा ना, दैट इज कि 0 एंड ए का हमारे पास मैक्सिमम कॉमन फैक्टर क्या होगा, दैट विल बी ए. एंड द रीजन लाइज इज कि यार आप 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, हमारे पास 0 आना ही है. ठीक है. तो यार जब आप a के फैक्टर्स निकालोगे इट विल बी a इंटू 1, एंड जब आप 0 के फैक्टर निकालोगे 0 इन्वॉल्व ईच नंबर, सो a इधर से भी आ जाएगा. तो जो मैक्सिमम मेरा कॉमन फैक्टर निकलेगा ना वो a निकल जाएगा. Therefore, whenever we calculate GCD by 0 and something, तो ये जो अपना डेफिनेट नंबर है which is not a 0, वो ही अपना GCD हो जाएगा. आई होप आपको लॉजिक समझ आ गया होगा, क्योंकि 0 से यार हम एक हर नंबर प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो हम ये वाला नंबर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, एंड ऑब्वियसली यही मैक्सिमम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकलेगा. लेकिन अगर दोनों ही नंबर 0 0 होंगे तो जीसीडी अनएग्जिस्ट हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा. सो आई होप यू गॉट द रीजन. अब इसका भी रीजन ये है कि 0 से हम कोई सा भी नंबर प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो जब मेरे पास दोनों ही नंबर 0 हो गए तो अब दोनों से इंफिनिटी इंफिनिटी निकल जाएगा ना, ग्रेटेस्ट नंबर. And infinity is something which is not accurate, which is not defined, therefore it is undefined. Now let's talk about rational and irrational numbers. So rational numbers are anything that has a decimal, which is fraction, which is integer, which is a natural number. Rational numbers are normal. But what are irrational numbers? Okay, now one quick revision. Rational numbers are basically, rational numbers can be non-terminating, मतलब कि 2.313131 till infinity, like that, it's not ending. So rational numbers can be non-terminating, but they are repeating in nature, like 313131, it's repeating after the decimal point. But irrational numbers are the numbers whose after the decimal point it is non-terminating and non-repeating, like 1 2 3 4 9 7 6 4. So there's not a pattern which is repeating after the decimal. So this is one of the major difference between a rational and irrational number. And how to identify the irrational number is like anything. Irrational numbers क्या होते हैं जो कि हमें जो रैशनल ना हो, इन शॉर्ट. सो बेसिकली जो भी नॉन स्क्वायर नंबर्स होते हैं, मतलब कि अगर 2 का मैं अंडर रूट लूँ तो यार इससे मुझे कोई नेचुरल नंबर नहीं मिल रहा है. ठीक है, इसे मैं कैलकुलेट नहीं कर पा रही हूँ. √3 मुझे नहीं मिलेगा, √5 मुझे नहीं मिलेगा. बेसिकली इसके जो आंसर्स होंगे ना, दे विल बी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, एंड हेंस दे विल बी द इरैशनल नंबर. सो इरैशनल नंबर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यार हमेशा हम कैलकुलेट तो नहीं करेंगे, हम अंडर रूट को कैलकुलेट नहीं करेंगे, राइट. सो व्हाट वी कैन से इज कि जो नॉन स्क्वायर नंबर्स होते हैं ना, मतलब कि ऐसे नंबर जो कि स्क्वायर से पैदा नहीं हो, लाइक 2 into 2 is 4. So my 4 is a square number, a number which is generated by the squaring. तो जो भी नॉन स्क्वायर नंबर होते हैं, अगर मैं उनका स्क्वायर रूट ले लूँ तो वो अपना इरैशनल नंबर होगा. Am I correct? Am I clear? So now after this knowledge, it is very easy to identify the irrational number. You need not to calculate under root 2 and identify, oh, this is a non-terminating and non-repeating number and therefore it's an irrational number. No, you don't need to do such a long procedure. All you have to keep in mind is that जो नॉन स्क्वायर नंबर्स होते हैं उनका स्क्वायर रूट करने पे जो नंबर आएगा दैट हैज टू बी अ इरैशनल नंबर. ओके. Okay, now here are the operations with the rational and irrational number. अगर मैं दो रैशनल नंबर्स को ऐड करूँ तो यार रैशनल मिलेगा, उनको मल्टीप्लाई करूँ तो भी रैशनल मिलेगा. अगर मैं एक रैशनल और इरैशनल को ऐड करूँ, फॉर एग्जांपल रैशनल इज 5 एंड इरैशनल इज अंडर रूट 5, तो मेरा आंसर क्या आया? मेरा आंसर आया इरैशनल. तो एक रैशनल और इरैशनल को ऐड करने में मेरा आंसर आएगा इरैशनल. एक रैशनल नंबर को इरैशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने में, दैट इज 5 into √5, दिस विल बी अगेन इरैशनल. एक इरैशनल नंबर और दूसरे इरैशनल नंबर को जब हम ऐड करेंगे तो यार हम कुछ नहीं कह सकते, और जब उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हम कुछ नहीं कह सकते.
तो रैशनल रैशनल एक दूसरे से काफी खुश रहते हैं, दो रैशनल साथ में आएंगे रैशनल ही होंगे। इरैशनल और जब रैशनल साथ में आ जाएंगे तो इनका बिल्कुल नहीं बनता है, तो इरैशनल वहां पे पावरफुल हो जाता है, तो बोथ टाइम वी गेट इरैशनल। बट जब इरैशनल और इरैशनल होता है तो यार हमें नहीं पता, अगर इनकी बन गई तो रैशनल, इनकी नहीं बनी तो इरैशनल। डन। सो बेसिकली आर आर में बहुत बनती है, आर और आई आर का पता नहीं, बन भी सकती है, आई मीन सॉरी, आर और आई आर बोथ आर कंप्लीटली ऑपोजिट, तो इनकी नहीं बनती। बट जो आई आर होते हैं सिर्फ बोथ आर नेगेटिव। नेगेटिव मतलब कि आप सेंस समझ रहे हो ना, आई एम जस्ट टेलिंग यू द ट्रिक हाउ टू लर्न। तो यार इनकी बन भी सकती है और इनकी नहीं भी बन सकती, वी डोंट नो, and this is how you have to learn all the six operation. Okay, learn to deal with the fraction that have a numerator and a denominator that could be a rational or irrational. तो यार for example मेरे पास 5/6 आ गया, so a denominator which is rational we have no issues with it, but हमारे पास कोई ऐसा denominator आया which is irrational like √3 or 5 plus √5 for example, both are irrational, then there is a problem. डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं आ सकता, उसे पसंद ही नहीं है। सो व्हाट वी डू, अगर देखो ऐसा सिंगल टर्म आया, so we just have to multiply that same number again in numerator and denominator. And what is the reason behind it, कि देखो सेम जब मल्टीप्लाई होता है like √3 into √3 will give me 3, दैट इज कि दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने से मेरे पास रैशनल आ चुका है, ठीक है ना। So that is the reason why I'm multiplying and dividing by again √3. But अगर मेरे पास ये 2 डिजिट नंबर आता है तो इसका पहले कॉन्जुगेट निकालो। कॉन्जुगेट मतलब कि इसका साइन, इन दोनों के बीच का जो साइन है वो डिफरेंट कर दो। तो 5 एंड √5 मेरे पास जो नंबर है उनके साइन को ऑपोजिट करो एंड यू विल गेट द कॉन्जुगेट। अब ये जो कॉन्जुगेट नंबर आया है इसे आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करो एंड then you solve it. अब इसका क्या फायदा होता है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव 3/5 plus √5, so you have to multiply and divide by this conjugate, that will be 5 minus √5, and now you are easy to solve. What is the reason, अगर आप डिनोमिनेटर को चेक करोगे तो हमारे पास a minus b and a plus b वाला फॉर्मेट आ चुका है, that is a² minus b²। तो अब इस फॉर्मूला को जैसे आप पुट करोगे ना, आप देखोगे कि इरेशनल से हमारे पास वापस से क्या आ गया है, एक रैशनल नंबर आ गया है। और हमारा प्रोसीजर ये है कि डिनोमिनेटर में इरेशनल नहीं होना चाहिए, सो एनी हाउ वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द रैशनल नंबर, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ वी रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो ये कॉन्जुगेट एंड स्क्वायर रूट वाले फंडे हैं, मैंने आपको सिंगल नंबर एंड डबल नंबर से समझा दिया। So basically you should know how to deal with the square roots of the irrational number. Okay. Now let's go to the another topic, and that is how to check two sets A and B are equal. तो मुझे दो सेट्स दिए गए हैं A और B और मुझे पता लगाना है कि दोनों के दोनों इक्वल है या नहीं। तो यार इसका जो मेन अप्रोच होती है या जो सबसे इजी अप्रोच होती है वो क्या होती है कि आप फॉर एग्जाम्पल देखो, सेट को लिखने के दो तरीके होते हैं, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म और एक होता है रोस्टर फॉर्म। सो रोस्टर फॉर्म इज द फॉर्म जहाँ पे आपको डायरेक्टली सेट दे दिया जाता है कि भाई ए में 1 2 3 नंबर है। बट सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, इसमें सेट बिल्ड की जाती है प्रॉपर्टी से। तो यहाँ आपको डायरेक्टली सेट नहीं दिया जाता है, आपको इसकी प्रॉपर्टी दी जाती है लाइक दिस। सो हियर आई हैव रिटन ए एज अ सेट बिल्डर फॉर्म। तो आपके पास तीन तरीके हैं। पहली अप्रोच क्या है कि उनकी प्रॉपर्टीज के थ्रू सेट को आइडेंटिफाई करो, बेसिकली सेट बिल्डर फॉर्म से उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो एंड आइडेंटिफाई करो क्या ए एंड बी सेम है, क्या हर एक एलिमेंट उनके सेम है। अगर सेम है देन ए एंड बी आर इक्वल, अदरवाइज दे आर नॉट इक्वल। बट सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट हम तभी कर पाएंगे जब कार्डिनलिटी छोटी होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर यार 100 नंबर है तो आप 100 नंबर को नहीं लिखोगे बैठ के, राइट। सो दिस procedure one is only possible when we have the cardinalities less. Cardinality means number of element in the set. तो फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ एलिमेंट मेरे पास सिर्फ 2 या 3 है तो यार मैं आराम से निकाल लूंगी, बट अगर 100 है तो मैं उसे रोस्टर फॉर्म में कभी नहीं लिखूंगी, राइट।
तो एक तो सेट फाइनाइट होने चाहिए और फाइनाइट के साथ साथ छोटे होने चाहिए, तभी मैं पहला प्रोसीजर अपनाऊंगी। वरना सेकंड प्रोसीजर क्या होता है, वेन डायग्राम बनाओ और कंपेयर करो, विच इज द इजीएस्ट ऑफ ऑल। वेन डायग्राम बनाना बहुत आसान होता है। एंड प्रोसीजर 3 क्या है, कंडीशंस को लाओ, ठीक है ना, कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड्स को यूज करो। तो इसमें 3 कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड होते हैं, यहाँ समझा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप कंक्लूड कर पा रहे हो कि बी सबसेट है ए का एंड ए सबसेट है बी का, मतलब कि ए के अंदर बी है और बी के अंदर ए है। तो यार ये तो तभी पॉसिबल है जब ए और बी बराबर होंगे। तो अगर आप ये दो स्टेटमेंट कंक्लूड कर पाते हो तो ये आप ये लिख सकते हो, एंड हेंस यू कैन प्रूव दैट ए एंड बी आर इक्वल। सिमिलरली अगर कहीं पे ये गिवन है दैट ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए, तो यार आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि ए और बी बराबर ही होंगे। एंड व्हाट इज द रीजन, देखो ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी माइनस ए यूनियन बी, राइट। और अगर मैं ए और बी को बराबर मान लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं बी के जगह ए ही सब्सटीट्यूट कर देती हूँ, सो इट विल बी ए प्लस ए माइनस, अब ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ए है 1 2 3 और मेरे पास बी भी है 1 2 3, तो ऑब्वियसली इन दोनों के इंटरसेक्शन क्या होंगे, 1 2 3, तो मेरे पास सेट ए ही आ गया ना वापस से ए, सो दिस गेट्स कैंसिल्ड आउट एंड आई गेट ए। तो जब ए और बी बराबर है तभी ए यूनियन बी ए के बराबर है या बी के बराबर है। So whenever you get this kind of statement by calculations, you can always say that A has to be equal to B to satisfy that A union B is equals to A, and similarly goes with the intersection point as well. So here are the 3 conditions by which you can conclude that A is equals to B. I hope you are clear that how to calculate that sets are equal or not. Now we have talked about rational numbers, natural numbers and set. Now let's talk about relation. So what are relation? तो यार relation दो set के बीच में होता है। अब वो set कोई एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं। तो for example मेरे पास एक set है 1 2 3, 1 2 and 3, and मेरे पास एक set है 2 4। तो इन दोनों के बीच में relations कितने possible है? Basically इनके कितने pairs allowed हैं? So यार 1 को 2 के, देखो अब जब रिलेशन होता है ना, तो उसको अगर मैं ए क्रॉस बी लिख रही हूँ, सो बेसिकली ए इज रिलेटेड टू बी, तो मेरा पहला एलिमेंट आएगा ए का और दूसरा एलिमेंट आएगा बी का। और अगर मैं लिख रही हूँ दैट बी रिलेटेड टू ए, तो मेरा जो पहला एलिमेंट आएगा दैट हैज टू बी ऑफ बी एंड दूसरा एलिमेंट विल बी ऑफ ए। बट लेट्स राइट द रिलेशंस ऑफ ए क्रॉस बी। तो मैं पहले ए वाला एलिमेंट लिखूंगी एंड देन बी वाला एलिमेंट लिखूंगी, राइट। तो मैंने ए के एक एलिमेंट को बी के सारे एलिमेंट से कनेक्ट कर दिया, रिलेट कर दिया। नाउ अगेन 2 कैन बी रिलेटेड टू 2 and 4 and 3 can be related to 2 and 4 again. So basically I have 1 2 3 4 5 6, so I have basically total 6 relation for A cross B. तो यार हम relations को calculate कैसे कर लेते हैं, A into B. The number of relations which are possible are A into B. That is, A is the cardinality of A and B is the cardinality of B. Cardinality मतलब number of element. तो इसमें number of element 3 थे, यहाँ number of element 2 थे, so जो total relation possible थे that was 3 into 2 which is 6. तो मुझे ऐसे manually calculate करने की भी need नहीं थी. Now let's read it. So suppose a relation R is defined on the set A. तो जब ए से ही कनेक्टेड होता है, दैट इज ए इज रिलेटेड टू ए, तो देखो दैट इज सिर्फ ए से रिलेटेड है। तो मेरे पास ये, तो पहले मुझे ये बताओ कितने रिलेशंस पॉसिबल थे। सो यार 3 into 3 दैट इज 9, सो बेसिकली टोटल 9 रिलेशंस आर पॉसिबल व्हेन वी आर डूइंग ए क्रॉस ए if there exist, if for each a comma a also belongs to the R, then R is reflexive. यार अब मैं ना पहले a into a लिख देती हूँ, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट्स है ना, ये आपको एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से समझ आएंगे। So it will be 1/1, 1,2, 1,3, 2,1, 2,2 and 2,3. Similarly 3,1, 3,2 and 3,3. So these are the relations of A into A. तो यार फॉर एग्जाम्पल मैं एक एलिमेंट पकड़ रही हूँ A
वाला, तो मैंने वन एलिमेंट पकड़ा। अगर मेरे इस रिलेशन में ए कॉमा ए एग्जिस्ट करता है तो मेरा वो रिलेशन, उस रिलेशन को मैं क्या नाम दे सकती हूँ, रिफ्लेक्सिव। तो यार ये मेरा रिफ्लेक्सिव होगा क्योंकि हर एक एलिमेंट, ए के हर एक एलिमेंट का वन, मतलब ए कॉमा ए वाला पेयर एग्जिस्ट करता है। तो वन के लिए वन कॉमा वन है, टू के लिए टू कॉमा टू है, एंड थ्री के लिए थ्री कॉमा थ्री एग्जिस्ट करता है। So for each element in A, there exists A comma A in the relation, and therefore A cross A is the reflexive in this case. Okay. Similarly, symmetric check होता है। तो यार दो पेयर मैंने लिए, फॉर एग्जाम्पल मैं वन कॉमा टू को उठा रही हूँ, तो अगर वन कॉमा टू है तो टू कॉमा वन भी होना चाहिए। अगर ये दोनों पेयर एग्जिस्ट करते हैं तो मैं बोल सकती हूँ कि यार मेरा जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक भी है। But we have to check. For example, 1, 1 है exist, 1, 2 है तो 2, 1 भी है, 1, 3 है तो 3, 1 भी है, 2, 3 है तो 3, 2 भी है. So basically, I have the opposite pairs for each pair. Therefore, this relation is symmetric as well. Now let's talk about the transitive. तो for example, मेरे पास एक पेयर है, मैं ले लेती हूँ 1, 2, और एक मेरे पास पेयर है 2, 3. So if I have A, B and B, C, then I must have one that is A, C. तो यार अगर ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं तो ये एग्जिस्ट करना ही चाहिए, और अगर ये वाला लाइक पेयर एग्जिस्ट करता है तो मेरा रिलेशन ट्रांसिटिव कहलाएगा। तो यार देखो 1, 2 और 2, 3 तो मेरे एग्जिस्ट करते हैं, 1, 2 एंड 2, 3। क्या मेरे 1, 3 एग्जिस्ट करता है? आंसर इज यस, and therefore it is transitive. अगर मेरा कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांसिटिव भी है, तो यार किसी को आप क्या बोलोगे कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांसिटिव है, इतनी मेहनत क्यों करनी है, एक ही नाम दे देते हैं ना। तो ऐसे रिलेशन जो कि तीनों हो उन्हें हम इक्विवेलेंस रिलेशन भी बोलते हैं। तो जैसे ही आप इक्विवेलेंस रिलेशन बोलोगे मुझे पता चल जाएगा कि ये तीनों हैं, ठीक है ना। So this is all we have learned in relation. Now the last topic is function. So what are function? So every function is a relation. Every function is a relation. पर जितने भी relations होते हैं वो function ही हो ऐसा जरूरी नहीं। तो यार function का एक बहुत ही important rule है, और वो क्या है कि for every input there should be only one output. That means कि फॉर एग्जाम्पल ये मेरा इनपुट सर्कल है, मेरा ये इनपुट सेट है, और ये मेरा आउटपुट सेट है। तो यार वन का ए इनपुट डालने पे वन भी आए और टू भी आए, ऐसा रिलेशन में तो पॉसिबल है, बट फंक्शन में पॉसिबल नहीं है। फॉर वन इनपुट आई मस्ट हैव ओनली वन आउटपुट. It can be possible that for different input I have the same output. It can be possible, but यार यहाँ से दो धागे नहीं निकलने चाहिए। तो ध्यान रखो कि जब हम निशाना मारे ना तो एक ही मारे। तो whenever we are talking about input must have only one output. So in ordered pair which is represented as input and output, a function is a relation. तो एक function relation ही होता है, but there should be only one output for each input. Different input can have the same output, but एक input का एक ही output होना चाहिए। समझ रहे हो ना मेरी बात? अगर मैं इसका फिगर बनाऊं, so this is not possible. Okay, फिगर को याद रखना ये। But this is possible. क्यों? क्योंकि for each input I have only one output. Okay, so I hope you got the point. Now what do we mean by the domain? So the set from which inputs are taken are known as the domain. So yeah, basically function एक relation है, और relations में हम दो set लेते हैं। तो वो set जिसे हम input ले रहे हैं that will be known as domain, and वो set जिसे हम output ले रहे हैं that will be known as the codomain. तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास A है जो कि गिवन है 1, 2, 3, 4, एंड मेरे पास एक B सेट है जिसमें गिवन है A, B, C एंड D. Okay, D is also there.
So when I am doing this, so this is my domain, this is my कोडोमेन. अब जब मैं इनके फंक्शन निकाल रही हूँ, तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आउटपुट साइज है A, B एंड C. तो आउटपुट का मेरा एक अलग सेट बन चुका है जो कि हमेशा कोडोमेन का सबसेट ही होगा, क्योंकि यार आउटपुट बी में से ही निकल सकते हैं, कहीं बाहर से नहीं निकलेंगे. पर ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे ही निकल जाए, समझ रहे हो? तो C is always the subset of B but need not to be equal. एंड ये जो मेरा आउटपुट का एक सेट बना है ना, दैट नोन एज दी रेंज. तो फंक्शन की रेंज कितनी है, उसकी पहुंच कितनी है. फॉर एग्जाम्पल 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स हैं मेरे पास कोडोमेन में, बट उसने सिर्फ 8 तक ही लिया, तो यार उसकी जो रेंज है ना वो 1 से लेकर 8 तक ही है. So the set of output are known as the range, the set of input are known as the domain, and the set of outputs are known as the codomain, where the function is constraint. I hope it's clear. These are very important terms. Domain, range and codomain. अगर आपको कोई भी डाउट है तो यार नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना. I will be more than happy to help you out. Okay. So we learned about domain, codomain and range. So if a function f, अगर f of a is equals to b, so यार ये मैंने डोमेन से लिया है, ये मेरे कोडोमेन में एग्जिस्ट करना चाहिए एंड b मेरे रेंज वाले सेट पे भी जाएगा. So what I can say is that a is the pre-image of b. Basically I have a in input and b in output. तो मैं क्या लिखती हूँ कि a का इमेज है b या b का प्री इमेज है a. कैसे भी बोल दो, ठीक है ना, बस बोलने के तरीके हैं. इमेज एंड प्री इमेज. Now this is very important, like there is a domain for some function with the special form. तो अगर मेरा फंक्शन एक अंडर रूट में है तो यार उसके अंदर जो भी फंक्शन लिखा होगा ना, इट हैज टू बी पॉजिटिव, क्योंकि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं हो सकता. दिस इज नॉट पॉसिबल. सो gx हैज टू बी पॉजिटिव. सिमिलरली अगर कोई फंक्शन में नीचे डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन है तो यार ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है ना, इट कैन नेवर बी जीरो, क्योंकि एनीथिंग अपॉन जीरो इज नॉट डिफाइंड. क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाता है. ठीक है. सो दीज आर द टू थिंग्स विच यू हैव टू कीप इन माइंड फॉर द डोमेन. Now learn to deal with the different type of functions. So basically we have two kind of function. Now this is extremely important. I am damn sure कि इधर से तो एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा. So basically one is injective, which is also known as one-to-one, and one is surjective, which is known as onto. तो इसे यार मैं थोड़ा आराम से समझाती हूँ. तो one-to-one क्या होता है? As the name suggests, देखो फंक्शन में पॉसिबल है A, B, C, 1, 2, 3. पहले मैं 3 केस बनाती हूँ, ठीक है, इससे आपको आराम से समझ आ जाएगा कि one-to-one है क्या. ठीक है. तो यार ये आपको पता होगा कि एक इनपुट के काफी सारे आउटपुट नहीं हो सकते एक फंक्शन में. सो दिस इज नॉट अ फंक्शन, बट अलग अलग इनपुट के एक ही आउटपुट पॉसिबल है. सो दिस इज अ फंक्शन. बट वो फंक्शन 1-to-1 कब कहलाएगा? जब एक इनपुट के लिए एक आउटपुट होगा. सो देयर इज नो रिपीटेशन. सो ए के लिए 1 है, बी के लिए 2 है, तो कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है इधर, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है. एंड देयरफॉर आई विल से दिस एज 1-to-1. एक जगह से एक ही जगह पे जा रहा है, मतलब तीर एक ही निशाने पे लग रही है. उसका इस वाले सिरा पे भी एक जना है, इस वाले सिरा पे भी एक जना है, और वो दोनों एक दूसरे के साथ ही हैं, किसी और के साथ नहीं है. सो दैट इज दी 1-to-1 फंक्शन. नो व्हाट इज ऑन-टू और सर्जेक्टिव? तो यार ऑन-टू फंक्शंस क्या कहलाएंगे? अब देखो, अब इधर मैं बात करूँ ना, तो मेरा कोडोमेन क्या है, मतलब कि द डोमेन, कोडोमेन इज दी possibilities of the output, that is 1, 2, 3. पर मेरा आउटपुट कितने हैं? सिर्फ 1 and 2. तो मेरा जो रेंज है वो क्या है? 1 and 2. दैट्स ऑल. बट ऐसे फंक्शंस जिसमें रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन like this, so that will be known as the onto functions. So here codomain is equals to the range. So 1-to-1 मतलब कि
एक इनपुट के लिए एक आउटपुट है और वो आउटपुट यूनिक है। एंड ऑन टू फंक्शन क्या होता है, वेयर कोडोमेन इज इक्वल्स टू रेंज, मतलब कि आउटपुट की जितनी भी पॉसिबिलिटी थी वो सारी की सारी कवर हो चुकी है। So that will be known as the onto function. So that's all in week 1. I hope that this revision has helped you. So if you have any queries, you can message us in the comment section below. And if you want week 2, week 3 and week 4 videos as well, then at least give me 18 likes so that I know that my hard work is not going in vain. So as soon as this video hits 18 like, new video will be up on our channel.